কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ডে আছি। আজকে আমরা অষ্টম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 28 থেকে কন্টিনিউ করব। 28 নম্বর অনুবাদ। জয় শ্রী প্রভুপাদ। তথায় শ্রীকৃষ্ণ এই রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, যথা বলপূর্বক উদুখল অধমুখ করিয়া তার উপর বসিয়া চঞ্চল নেত্রে যখন বানরকে घृत दान करितेছেন। घृत क्यों लिखा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मक्खन तो घृत नहीं होते, घृत माने घी। ये मक्खन के लिए क्या अलग अलग वर्ड है? एक नवीन ने क्या बोलते हैं, मक्खन को घी भी बोलते हैं। मक्खन को घी बोलते हैं, तो घी को क्या बोलते हैं? मक्खन। और वो जो कच्चा घी को ना मक्खन भी बोलते हैं और उसको कच्चा घी भी बोलते हैं। जब जो छाछ से निकालते हैं ना दही से, उसको हम लोग घी भी बोलते हैं। नवनीत भी बोलते हैं। नवनीत, हाँ नवनीत। एनीवेज, घृत दान करिতেছেন, तो बंदर लोग को खिला रहा है। তখন জননী পুত্রকে ঐরূপ কার্য করিতে দেখিয়া অল্প মৃদু হাস্য করিলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন। হিন্দি पंकज बाबू। वहां पर बलपूर्वक उखल को औंधा करके उसके ऊपर बैठकर चंचल नयन हो वानर के लिए माखन को देते हुए पुत्र को देखकर माता मुस्कुरा गई एवं विस्मित हो गई। ब्रजेश्वरी चौर्जाकारी पुत्र के, चौर्जाकारी माने चोर, चोरी वाला पुत्र, जो चोरी माने चोरी कार्य करता है, ধরিবার নিমিত্ত গোপনে প্রস্থান করিলেন। আচরিত আস্তে আস্তে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে দেখিয়া দৌড়িয়া পালাইলেন। লোকমধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে চৌরের শতচক্ষু এবং ধনস্বামীর 2 চক্ষু মাত্র, অর্থাৎ গৃহস্বামী 2 চক্ষুতে দেখিয়া ধন রক্ষা করে, চোর তাহা শতচক্ষুতে দেখিয়া হরণ করে। এ প্রচলিত কথা है। তাৎপর্য এই যে গৃহী বহু বহু সতর্কতা পূর্বক ধন রক্ষা করিলেও চোরের তাহা দুর্গেও হয় না, সহজেই হরণ করিয়া লয় চোর। হিন্দি। चोरी करने वाले पुत्र को पकड़ने के लिए श्री यशोदा माँ गुप्त रूप से चल दी। श्री कृष्ण भी माता को दूर से ही देखकर दौड़ पड़े। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि चोर के सैकड़ों नेत्र होते हैं तथा धन की रक्षा करने वाले के 2 ही नेत्र होते हैं, अर्थात घर का स्वामी 2 नेत्र से ही धन की रक्षा करता है, किंतु चोर उसको सैकड़ों नेत्रों से देखकर चुरा लेता है। বল গর্বিত বানরও নবনীতাদি ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। পরিশেষে অবশেষে ব্রজেশ্বরী একখানি ষষ্ঠী বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হইলেন। ছড়িলিকারায় তাহাকে দেখিয়া শীঘ্র বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিল। সব अपने अपने शाखा में चला गया बंदर। हिंदी। बल से गर्वित वह वानर भी माखन खाकर तृप्त हो गया। पश्चात वस्त्र से वेष्टित एक लठिया को हाथ में लेकर आती हुई यशोदा को देखकर शीघ्र ही वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया। তারপর পুত্র যখন দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলেন, তখন জননী পুত্রর অনুগমন করিলেন পিছে পিছে গিয়া। অনুগমন কালে তাহার কবরী হইতে, কবরী কি হবে, কামরিয়া স্যার হোগা, পুষ্পদাম খরিত হইতে লাগিল এবং বলিতে লাগিলেন, ওহে চোররাজ, তুই কোথায় যাইতেছিস? এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অপরিস্ফুট ক্রন্দন এবং হাস্যর দ্বারা বালকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্রন্দন এবং হাস্য, অদ্ভুত রস। এই বালককে ধরিবেন বলিয়া সেই জননী শীঘ্র নিকটে ধাবমান হইলেন, অথচ জননী সেই ধাবমান পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন না। তাহার দৃষ্টান্ত এই: পশ্চিম দিকবর্তিনী মেঘমালা যেরূপ বায়ু বেগে পূর্ব দিকে গমন দ্রুত অল্প মেঘকেও লাভ করিতে পারে না,
ইনিও সেই পুত্রকে ধরিতে পারিলেন না। হিন্দি। तदंतर दौड़ते हुए पुत्र के पीछे पीछे माता भी दौड़ पड़ी। दौड़ते समय उनके केस पास से पुष्पों की वृष्टि का विस्तार होने लग गया और बोली कि अरे चोरराज, तुम कहाँ जा रहे हो? यह बात सुनकर अत्यंत अप्रकट रोने से एवं हंसी के द्वारा बालक का सौंदर्य और बढ़ गया। ऐसे अपने बालक को पकड़ने के लिए शीघ्रता पूर्वक पास में होकर दौड़ती हुई भी माता दौड़ते हुए पुत्र को न प्राप्त कर सकी। उसका दृष्टांत यह है कि पश्चिम दिशा में रहने वाली मेघ पंक्ति जैसे वायु के वेग से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए छोटे से मेघ को भी प्राप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार माता भी पुत्र को न पकड़ सकी। তারপর পুরোদার কখনো জননী গমনদার নহে। পুরন্দর কখনো জননীর গমনদার নহে, ইহা ভাবিয়া বালক পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে। বালক পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে সেই দিকেই গমন করিলেন। আর জননী তৎকালে তথায় জনতা বিদ্যমান নাই জানিয়া তাহারই অনুগমন করিলেন, কারণ জনতা মধ্যে কুলবধূ যশোদার গমন উপযুক্ত নহে। হিন্দি। तदंतर पूर्व का दरवाजा माता के जाने का दरवाजा नहीं है, ऐसी भावना करके भागने के आग्रह से युक्त बाल कृष्ण ने उसी दिशा को पकड़ लिया। माता भी उस समय वहां पर जनता नहीं है ऐसे जानकर उसके पीछे पीछे चल दी। मैंने ये कोई मैंने मेन रोड तक जाएगा तो मेन रोड में तो बाहर का पब्लिक है, तो लेडीज घर का लेडीज कभी बाहर नहीं जाएगा, ये सोचकर भगवान उसी दरवाजे से गया। और यशोदा माँ भी सोचा अभी कोई नहीं रहेगा ये टाइम में कोई बाहर, तो यशोदा माँ भी फॉलो किया। তারপর শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া মানে পিছে নেই দেখকার যখন পলায়ন করিলেন তখন জননী তাহাকে ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি যখন ভয়ে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখনই যশোদা করদারে পুত্রকে গ্রহণ করিতে পারিলেন। হরি বল। पश्चात जब पीछे की ओर न देखते हुए श्री कृष्ण भागे तब माता उनको न प्राप्त कर सकी, किंतु भय के कारण श्री कृष्ण ने जब पीछे की ओर देखा उसी समय उनको श्री यशोदा जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया। देखिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग चीज दिया है। कहीं भागवत में दिया है कि भगवान ने स्वेच्छा से यशोदा माँ को पकड़ में आ गए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा माँ इतना देर से भाग रही है। तथापि তিনি দ্রুত গমনের জন্য দুইটি চক্ষুকে সাক্ষী রূপে করিলেন। মাতার্ক প্রকাশকে নিবারণ করিবার জন্য রোদন করিতে লাগিলেন এবং শরীরের দৃষ্টতা সূচক কম্প সৃজন করিলেন, অর্থাৎ দৃষ্টতাপূর্বক মিছামিছি করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, কিন্তু অভিনয় মার্জনা করিয়া দুষ্টতা পরিহার করিলেন না। হিন্দি। तथापि बाल कृष्ण ने शीघ्र भागने के लिए अपने दोनों नेत्रों को साक्षी स्वरूप बना लिया, माता की क्रोधोत्पत्ति को दूर करने वाला रोना आरंभ कर दिया एवं शरीर में धृष्टता की रक्षा करने वाले कंप को उत्पन्न कर दिया, अर्थात कांपने लग गए, किंतु अविनय का मार्जन नहीं किया, अर्थात उश्कीलता का त्याग नहीं किया। क्या त्याग नहीं किया? नॉटीनेस। हिंदी में क्या लिखा है उसका? उश्कीलता। জননী যখনই নিজ শিশুর মুখ সবেগে সম্মুখবর্তী করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখনই অচিক্কণ ভাবের জন্য বিলেপনকারী ঘৃত গোপন করিলেন, অর্থাৎ অঙ্গ ধূলি মাখায় থাকিলে ঘৃত দ্বারা চিক্কন করিতে দিলেন না। হিন্দি। माता जब जब अपने बालक के मुख को हठपूर्वक अपने सम्मुख करती है,
श्री कृष्ण तब तब अपने मुख को रूखा करने के लिए अर्थात माखन के लिपट जाने से उत्पन्न चिकनाई को दूर करने के लिए छिपा लेते। তারপর মাতা ভয় দেখাইয়া বলিলেন, হা কষ্ট, ওহে কৃষ্ণ, তুমি যদি গৃহে চুরি করিতে ইচ্ছা করো, তা হইলে আমার হস্তধৃত এই ষষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত করো, মেরা হাত মে ইয়ে ছড়ি কো দেখো। এই কথা শুনিয়া নিজের কমললোচন পুত্রটি ভয় ব্যাকুল হইলে ব্রজেশ্বরী সেই ষষ্ঠীকে পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দি। तदंतर माता भय दिखाती हुई बोली, हाँ, बड़े कष्ट की बात है। अगर कृष्ण, तुम यदि घर में ही चोरी करना चाहते हो, तब तो मेरे हाथ में धरी हुई लठिया को जगह देख लो। यह बात सुनकर कमल नयन वाले अपने पुत्र के भय से व्याकुल हो जाने पर श्री ब्रजरानी ने उस लठिया को त्याग दिया। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের কাতর বাক্য এবং মাতার ভীষণ বাক্য যথা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মা, তুমি আমাকে প্রহার করিও না। জননী বলিলেন, তুমি চোর, চোর। এই বলিয়া গুপ্তভাবে হাস্য করিতে করিতে বলপূর্বক হঠাৎ এইরূপ বাক্য কলহ বিস্তার করিতে লাগিলেন। उस समय श्री कृष्ण के कातर वाक्य एवं माता के भीषण वाक्य यथा श्री कृष्ण बोले, मैया, तू मुझे मारना नहीं। माता बोली, तू चोर है, तू चोर है। इस प्रकार कहकर गुप्त भाव से मन मन में हंसती हुई ब्रजरानी श्री कृष्ण के साथ बलपूर्वक हठात इस प्रकार वाक कलह का विस्तार करने लग गई। যদিও মাতা বলিলেন, কি প্রকারে দধিভাণ্ড ভগ্ন হইল? পুত্র বলিলেন, পরমেশ্বর এই দণ্ড, পরমেশ্বর এই দণ্ড। एक पैराग्राफ छूट गया बहू, 36 नंबर। नहीं, 39। মাতা বলিলেন, অহো, তুমি চোর সকলের রাজা। মাতার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমার পিতৃবংশজাত অর্থাৎ আমার মাতামহ বংশের সকলেরই চোর। हरे कृष्ण। उनका बाप को भी मैंने फादर पूरा फैमिली को चोर बोल दिया कृष्ण। গব্য চোর শিশুর সহিত জননী এই রূপে কথোপকথন করিতেছিলেন। হিন্দি। माता बोली, अहो, अरे, तू सभी चोरों का राजा है। माता की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैया, चोर तो तुम्हारे पिता के गोत्र में उत्पन्न होने वाले हैं। हमारे घर में चोरों का क्या काम? माखन चोरी करने वाले अपने बालक के साथ माता ने इस प्रकार कथोपकथन किया। যদিও মাতা বলিলেন, কি প্রকারে দধিভঙ্গ ভগ্ন হইল? পুত্র বলিলেন, পরমেশ্বর এই দণ্ড। মাতা, কোন ব্যক্তি বানরকে ঘৃত প্রদান করিয়াছে? পুত্র, যে ব্যক্তি এই বানর সৃজন করিয়াছে। রি বল, বাহ। হিন্দি। किंतु माता पुनः बोली, क्यों रे, यह दही की चलावनी कैसे फूट गई? पुत्र ने कहा, यह तो परमेश्वर का दिया हुआ दंड है। माता बोली, बंधन के लिए घी किसने दिया? पुत्र बोला, जिसने इस बानर को बनाया। পুনর্বার জননী বলিলেন, আমার বোধ হয় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ সদ্যজাত ঘৃত তুমি সর্বদাই আস্বাদ নিয়ে ভোজন করিয়া থাকো। এই বলিয়া জননী সেই শিশুর প্রতি চোরের ন্যায় আক্রোশ করিয়া অবশেষে আর্দ্রচিত্ত হইলেন। হিন্দি। माता पुनः बोली, मैं तो यही शंका करती हूँ कि यज्ञ के अंग स्वरूप इस ताजे ताजे माखन को तू ही सर्वदा स्वाद ले लेकर खा जाता है। इस प्रकार चोर की तरह शिशु के प्रति फटकार लगाती हुई भी माता अंत में आर्द्रचित्त हो गई। তারপর জননী সক্রোধে হাস্য করিয়া, তোমার রহস্য ব্যক্ত করো এবং দণ্ড পরিত্যাগ করো, এই কথা বলিলে পুত্র নয়নে রোদনারম্ভ করিয়া বলিলেন। হিন্দি। तदंतर माता ने क्रोध पूर्वक हंस कर कहा कि अपने रहस्य को कहो एवं दंभ को त्याग दो। माता के इस प्रकार पूछने पर नेत्रों से रोना आरंभ करके पुत्र ने कहा,
যে কালে তুমি অতি দ্রুত বেগে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তোমার পদদয়ের কঠোকাভরণের সংঘর্ষে দধিমণ্ডের ঘট ভাঙিয়া গিয়াছে। ইহাতে আমার কি দুষ্টতা? হরে কৃষ্ণ। तदंतर देखो मैया, जिस समय तू दूध को उतारने के लिए हड़बड़ा के अत्यंत वेग से दौड़ी थी, उस समय तेरे दोनों चरणों के कड़ुलाओं के संघर्ष से अर्थात टक्कर से यह दही के मांड का घड़ा अर्थात अचले से भगी यह चलावनी फूट गई। इसमें मेरी क्या दुष्टता है? এই বানর ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চুরি করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করে, এবং যখন সে ঘৃত আকর্ষণ করে তখন আমি তাহাকে ধরিয়া থাকি। ইহাতে আমার কি দুষ্টতা? হরে কৃষ্ণ। और ईश्वर के द्वारा प्रेरित वह बंदर चोरी करने के लिए घर में आ घुसा। जब वह माखन को खींचने लग गया तब मैंने उसको पकड़ लिया। अब तू ही बता, इसमें मेरी कौन सी दुष्टता है? তথাপি আমি তোমাকে ষষ্ঠী ধারণ করিতে দেখিয়া চোরের মতো পলায়ন করিয়াছিলাম, এবং তুমি আমাকে ভীত দেখিয়া নির্দয় ভাবে বৃদ্ধা মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলে। तो भी मैं तुझको लठिया लिए हुए देखकर चोर की तरह दौड़ पड़ा, किंतु तू तो मुझको भयभीत देखकर भी वृथा ही निर्दयता पूर्वक मेरे पीछे दौड़ गई है। তারপর জননী যেন অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিলেন, আর বাক্য চতুর্যকারী গণের রাজা, ওরে চৌর শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্রজেশ্বরের পুত্র হইয়া বানরের প্রিয় হইয়া বাননের স্বভাব পাইয়াছ। হরে কৃষ্ণ। তারপর নিজে ভীত হইয়া এবং জননীকেও ভঙ্গিপূর্বক কিঞ্চিত ভয় দেখাইয়া পুত্র বলিলেন, যদি বানরী হইলাম তবে আমি বনে প্রবেশ করিয়া তথায় অবস্থান করিব। হরে কৃষ্ণ। तदंतर अनुताप सा करती हुई माता बोली, अरे बातों की युक्ति भिड़ाने वालों में श्रेष्ठ, अरे चोरों में उत्तम, तू नरों में श्रेष्ठ ब्रजराज का पुत्र होकर भी वानरों से प्यार करता है, अतः तू वानरों कैसे स्वभाव वाला है? आगे। माता की ऐसी बात सुनकर भयभीत होकर इशारे से किंचित भय दिखाते हुए पुत्र ने कहा कि यदि मैं वानर ही हूं तब तो मैं वन में प्रविष्ट होकर ही रहूंगा। अब फिर से टेढ़ा हो गया, सीधा हो जाएगा। अभी से ब्लैकमेलिंग चल रहा है। वो तो ये इसमें स्क्रीन में दिखता है तो सीधा देखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखता है तो फिर बुक में देखते हैं। बुक को सीधा रखिए, जो मेरे जैसा है। मैं सीधा बैठा हुआ हूँ ना, ऐसे सीधा बैठिए, साउंड एकदम अच्छा आएगा, क्लैरिटी। मैं अगर उधर पर हूँ तो कैसे साउंड आएगा बताइए। তারপর মাতা এই কথা শুনিয়া সভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কে জানে এই অভিমানী বালক এই রূপ করিলে করিতে পারে। করিতে পারে মানে এবি জঙ্গল में चला जा सकता है। তবে বনপ্রবেশ নিবারণ নিমিত্ত ইহাকে বন্ধন করিয়া রাখাই আমার কর্তব্য। যেহেতু আমি একাকিনী, কিরূপে গৃহ এবং বালকের তত্ত্বাবধারণ করিব? আমার পক্ষে তা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিবে। পরে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন। হিন্দি। देखिए 5000 साल पहले कृष्ण जी जैसे अभी बच्चा लोग ब्लैकमेल करता है वैसे वो चालू कर दिए। एक्चुअली ये गोपाल चंपू, नेक्स्ट टाइम कार्तिक मास में ये गोपाल चंपू से भी हम लोग पाठ कर सकते हैं ना, अच्छा हो गया। अब एक दिन ये वाला पढ़ के बोले थे एक बार। अच्छा। तदंतर माता ने भयपूर्वक मन में विचार किया कि कौन जाने यह अभिमानी बालक ऐसा भी कर सकता है, तब तो वन प्रवेश के निवारण के लिए इसको बांध कर रखना ही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि मुझ अकेली के द्वारा घर और बालक इन दोनों का संभालना कठिन हो जाएगा। पुनः इस प्रकार स्पष्ट बोली, ওরে চোর, ওরে চঞ্চল, তুমি চঞ্চল চক্ষু শোভা দ্বারা সকলের প্রতি মোহ নিক্ষেপ করিতেছ, আমার নিবারণ মানিতেছ না। আমি তোমাকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিতেছি। যদি তোমার শক্তি থাকে প্রকাশ করো এবং অন্য বস্তু চুরি করো। হিন্দি। अरे चोर, अरे चंचल,
वो अपने चंचल नेत्रों की शोभा द्वारा सभी के प्रति मोह को फेंकने वाले अर्थात सबको विमुग्ध करने वाले मेरे निवारण को क्यों नहीं मानते हो? देख, मैं तुझको बांध कर शीघ्र ही घर को जाती हूँ। यदि तुझ में शक्ति है तो प्रकट कर दे एवं दूसरी वस्तु की भी चोरी कर। এই বলিয়া মাতা বন্ধন করিতে উপক্রম করিলে পুত্র রোষ ভরে পরিপূর্ণ হইয়া ফেন ফুৎকার করিতে করিতে সজল নয়নে উচ্চস্বরে বলিলেন, মা রোহিণী, আমার ভ্রাতার সহিত কোথায় গমন করিয়াছ? তুমি আমার নিকট নাই বলিয়া মাতা আমাকে বন্ধন করিতেছেন। অতএব তুমি শীঘ্রই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হও। হিন্দি। माता के द्वारा बंधन का उद्यम प्रारंभ होते ही पुत्र ने क्रोध में भरकर फुफकार सी मारते हुए सजल नयन हो ऊंचे स्वर से कहा कि अरे रोहिणी अम्मा, हमारे बड़े भैया के सहित तू कहाँ चली गई है? तेरे बिना आज ये मैया मुझको बांध रही है, इसलिए तू यहाँ शीघ्र आ जा। कृष्णा किसको आवाज लगाए? रोहिणी मैया को? हाँ, मरियम। हाँ, निर्गुणा माता जी पूछिए। पंकज प्रभु बोलिए, उनका उत्तर क्या प्रश्न है? पूछिए। हो गया। पचास नंबर। हेलो, हरी बोल। हाँ बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है? हो गया प्रश्न, उत्तर मिल गया। अच्छा, कहाँ से अभी क्या होगा? 50 नंबर होगा। দূরে অবস্থান করাতে রোহিণী এই বাক্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। रोहिणी माता कहाँ गई थी? इनको याद है? उपनंद के यहाँ पे। হ্যাঁ, কিন্তু গৃহসমী পরবর্তিনী কতিপয় অপর রমণী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অবধারণ করিয়া একত্র মিলিত হইল। ইহারাই পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎসনা করিয়াছিল। এই স্থানে স্বীয় বাক্য স্মরণ করাবার জন্য এই সেই চোর আপনার গৃহ কোনো কার্য করিয়াছে নাকি, যেন এইরূপ সূচনা করিতে করিতে একসঙ্গে হাস্য করিয়াছিল। হিন্দি। दूर चले जाने के कारण श्री रोहिणी ने इन वाक्यों को नहीं सुना समझा, किंतु श्री यशोदा जी के घर के निकट ही जिनके घर हैं एवं पहले भी जो श्री कृष्ण का उपालंब फटकारना आदि कर चुकी हैं, ऐसी नारियां परंपरा से इस वृत्तांत को जानकर एकत्रित होकर आ मिली और अपने पुराने उलाहने की याद दिलाने के लिए इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कोई कौतुकमय कार्य कर दिया है क्या? इस प्रकार की सूचना सी करती हुई एक साथ हंस पड़ी। তখন যশোদা তাহাদের বাক্য অবধারণ না করিয়া আপনার সংযুক্ত কুণ্ডল অর্থাৎ খোপা অথবা ঝুটি হইতে পরিভ্রষ্ট এক পট্টডরি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বারের বহির্ভাগে স্থাপিত উদুখলকে লক্ষ্য করিল এবং দক্ষ যজ্ঞে দক্ষ প্রজাপতির গলদেশে রুদ্রানুচরেরা যেরূপ বন্ধন করিয়াছিল সেরূপ সেই পট্টদড়ি দ্বারা আগ্রহ সহকারে বস্ত্র সহিত মধ্য দেশে মানে পেট মে বালককে বন্ধন করিতে এবং শিক্ষা দান করিতে জননী উদ্যত হইলেন, কিন্তু সেই বন্ধন পট্টদড়ের অবধয় 2 আঙ্গুল নুন হইয়া গেল। हिंदी। तदंतर पुत्र को शिक्षा देने वाली माता यशोदा उन स्त्रियों के वाक्यों की ओर ध्यान न देती हुई अपनी वेणी के बंधन से गिरी हुई एक रेशमी डोरी को लेकर
शीघ्र ही घर के दरवाजे के बाहर के भाग में धरे हुए उखल का लक्ष्य कर बछड़ा के गले के बंधन की तरह वस्त्रों सहित पुत्र की कमर में आग्रह पूर्वक उस डोरी से बांधने का उद्योग करने लग गई, किंतु वह रेशमी डोरी 2 अंगुल कम पड़ गई। তারপর সেই কবরী হইতে তুলিয়া অন্য পট্ট দৌড় বিন্যস্ত করিলে তাহারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল, অর্থাৎ তাহাও 2 অঙ্গুলি পরিমিত হইলেও নুন হইল। ব্রজেশ্বরী যেন আশ্চর্যভাবে অন্য নারী কর্তৃক সমর্পিত বহুতর মন্থন রজ্জুর দ্বারাও বন্ধনের সমাপ্তি করিতে পারিলেন না। হিন্দি। उसके बाद उसी चुटिया से निकालकर दूसरी डोरी के बांधने पर भी वही अवस्था दिखाई पड़ी, अर्थात वह भी 2 अंगुल कम पड़ गई। पश्चात आश्चर्यपूर्वक अन्य गोपियों के द्वारा दी गई दधी बंधन की अनेक रस्सियों के द्वारा भी ब्रजेश्वरी बंधन का पार न पा सकी। তারপর যেইরূপ দূরবর্তী পর্বতে মেঘ সকল লগ্ন হইয়াও অলগ্ন ভাবে দুষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ 2 অঙ্গুলির আভাস যুক্ত, অর্থাৎ তাহার সেই ক্ষুদ্র অঙ্গে রজ্জু সকল অবকাশ প্রাপ্ত দুষ্ট হইল, অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াও অসংযোজিত হইল। হিন্দি। तदंतर जिस प्रकार दूर के पर्वत में लगे हुए मेघ भी नहीं लगे से दिखाई देते हैं, उसी प्रकार 2 अंगुल दिखाई देने वाले श्री कृष्ण के अंग में सारी रस्सियां बिना लगी सी दिखाई देती है, अर्थात सभी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। ইহা দেখিয়া পরিহাস করিতে করিতে ব্রজ মহিলাগণ বলিয়াছিল যথা, এই ব্রজেশ্বরী, আমরা পূর্বেই তো নিবেদন করিয়াছি যে আপনার এই পুত্র সমুন্নত মোহিনী শক্তি দ্বারা কফল্লক নামক আদি চোরকেও কম্পিত করিয়া এবং চৌর্য দ্রব্য মাত্র ভোজনে সুখী অথবা দাতা ও ভোক্তা জনগণের আনন্দপ্রদ হইয়াছে। ইহার দ্বারা শেষে কিন্তু পরদ্রব্যের অপহরণকর্তা হইয়াই প্রকাশ পাইতেছে। মাতা বলিলেন, এই বালক কুক্ষণে জন্মিয়াছে, অথচ অজ্ঞ, ভালো মন্দ কিছুই জানে না, কিন্তু আমার বোধ হয় তোমার দিগরই ইহা কোনো মায়া ঘটিয়া বিদ্যা হইবে। হরে কৃষ্ণ। যেহেতু অন্তরে ইহার পক্ষপাতিনী হইয়া পর্যালোচনা এবং বাহিরে অন্য প্রকার ব্যবহার করিতেছ। ব্রজ মহিলা সকলে সহাস্যে বলিলেন, হে পূজ্য, আমরা আপনার চরণে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমাদের বিস্ময়কারিণী এমন কোনো বিদ্যা নাই। হিন্দি। यह देखती हुई एवं हंसती हुई ब्रज नारियां बोली, अरे ब्रजेश्वरी, हमने तुमसे पहले ही निवेदन किया था कि आपका यह पुत्र बढ़ी चढ़ी मोहिनी शक्ति द्वारा कफल्लक प्राथमिक चोर को भी तिरस्कृत करता हुआ चोरी के द्रव्य मात्र से उत्पन्न दाता भोक्तापन्न से प्रसन्न रहने वाला है एवं दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता होकर ही प्रकाश पा रहा है। तो मानेटा की उल्टा की रॉबिनहुड, मतलब चोरी करके बांटने वाला। আপনার পুত্র সম্মত মোহিনী শক্তির দ্বারা কফল্লক নামক আদি চোরকেও কম্পিত করিয়া, মানে এক্সপার্ট চোর কো ভি হারা দেগা, মানে হি ইজ এক্সপার্ট এন্ড এক্সপার্ট চোর। পরের লাইনটা, এবং চৌর্য দ্রব্য মাত্র ভোজনে সুখী অথবা দাতা ও ভোক্তা জনগণের আনন্দপ্রদ হইয়াছে। হ্যাঁ, खुद को भी आनंद प्रदान कर रहा है और दूसरे को दाता एक से लूट के दूसरे को बांटे। यशोदा बोली, आजकल का पैदा हुआ छोटा सा यह बालक छल छिद्रों को क्या जानता है, किंतु मालूम पड़ता है तुम्हारी ही यह कोई निंदनीय छल भरी विद्या है, जिस कारण भीतर से तो इसकी पक्षपातिनी दिखाई देती हो एवं बाहर से अन्य प्रकार का व्यवहार करती हो। सभी ब्रज महिलाएं हंसकर बोली, हे पूजनीय श्री यशोदे, हम आपके श्री चरणों की शपथ खाकर कहती हैं कि विस्मय कारिणी यह विद्या हमारी नहीं है।
ব্রজেশ্বরী মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে গর্গমুনির বাক্যসমূহের মতো কোন ভাগবতী শক্তি নিশ্চয়ই এই শিশুকে নিরোধ করিতেছে। वास्तविक এই দুগ্ধ বালক কিছুই জানে না। হিন্দি। श्री यशोदा जी ने मन में विचार किया कि तब तो श्री गंगाचार्य जी के वचनों के अनुसार कोई भगवत संबंधी शक्ति ही इसको घेर लेती है। वास्तविक दूध मुहा यह बालक तो कुछ भी नहीं जानता। এইরূপ ভাবনা করিয়া যশোদার বাৎসল্য রস উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুনর্বার শিক্ষা দেবার জন্য অন্যান্য মন্থন রজ্জু সকল বারবার আনাইয়া আগ্রহের সহিত বন্ধন করিলেও গত্যন্তর অর্থাৎ কোনো উপায়ের অবধারণ করিতে পারিলেন না। उसके बाद श्री यशोदा जी इस आश्चर्य का अंत देखने के लिए उन्हीं गोपियों के द्वारा अपने अपने घर से दधी मंथन की और भी नेतियों को बारंबार मंगाकर आग्रह पूर्वक बंधन कसती हुई भी बांधने का कोई भी उपाय न पा सकी। তারপর ব্রজেশ্বরী পুত্রকে বন্ধন করিতে উদযুক্ত হইয়া সেই অশেষ কর্মের শেষ প্রাপ্ত হইলেন না। অধিকন্ত বন্ধন করিতে গিয়ে অঙ্গের প্রচুর পরিমাণে ঘর্মজল নির্গত হইয়াছিল এবং বারবার চূর্ণ কুণ্ডল রাশি দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ সমাধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। तदंतर पुत्र को बांधती हुई भी ब्रजेश्वरी उस बंधन रूप अपार कर्म का पार न पा सकी, अपितु पसीने के मारे लथपथ हो गई एवं बारंबार अपनी अलकावलियों द्वारा आवृत होकर शांत हो गई। भारती माता जी थोड़ा सुदामाई वल्लभी माता जी से बोलिए अभी कोई स्पेन दे देने के लिए। তারপর যে পর্যন্ত যদুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ হঠতায় অর্থাৎ সঠতাতে অধিক পর্যন্ত ছিল সেই পর্যন্ত মাতার যত্ন যেন গ্রন্থাবিষ্ঠের মতো বিফল হইয়াছিল। তারপর জননীর ব্যাকুলতায় শ্রীকৃষ্ণের মন যখন বশীভূত হইল, তাহার গাত্রে প্রথম দুইটি ডোর সম্বন্ধ মাত্রেই সকলেই বুঝিতে পারিলেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হইয়াছেন এবং অন্যান্য সমুদায় রজ্জু বন্ধন রজ্জু তাহার দেহের অকার্যকর রূপ দৃষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হওয়াতে আরো রজ্জুর প্রয়োজন হইল না। হিন্দি। तदंतर यदुकुलोत्पन्न श्री कृष्ण का हठ करने में जब तक अधिक प्रयत्न था, तब तक माता का आग्रह भी ग्रह गृहीत की तरह निष्फल था। माता की विकलता से श्री कृष्ण का मन जब वशीभूत हो गया, तब तो उनके गात्र में पहली यशोदा जी की वेणी की दो डोमियों के संबंध मात्र से सभी ने जान लिया कि अब के श्री कृष्ण बंध गए और बाकी की सारी रस्सियां उनके शरीर में बची हुई सी दिखाई पड़ती थी। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের কর্মকারিণী যোগ্যমায়া নামনি শক্তি, यस भारती माता जी कॉल नहीं उठा रही हैं। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের কর্মকারিণী যোগমায়া নামনি শক্তি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের অনুগতা হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অতি আশ্চর্য কার্য সকলকে মাতার নিকটে ভ্রমরী রূপে ধারণা করাইলেন। অতঃপর রজ্জু বন্ধনটিকে কৃষ্ণ দেহে স্থিতিপ্রাপ্ত হইলে সেই বন্ধনকে অতি দীর্ঘ অন্য রজ্জুর দ্বারা বিশেষ রূপে বন্ধন করিয়া সেই রজ্জুর দ্বারে উদুকুলের মধ্যে জননী বন্ধন করিলেন। হিন্দি। उस समय श्री कृष्ण की सेविका योग माया नाम वाली शक्ति उनके मन के अनुकूल थी, जिसके द्वारा ही यह बंधन रूपी कार्य निष्पन्न कराकर माता के प्रति भी यह भ्रम ही है ऐसा विश्वास प्रतिदिन प्राप्त करा दिया जाता था। उसके बाद वह बंधन श्री कृष्ण के देह में जब स्थिर हो गया, तब उसी बंधन को अत्यंत लंबी एक दूसरी रस्सी के द्वारा अच्छी तरह बांधकर
उसी रस्सी के द्वारा माता ने उस उखल के मध्य भाग को बांध दिया। अभी 61 होगा ना? हरे कृष्णा बाबू जी, तो यहाँ जो दिया है, हम लोग जो पिक्चर देखते हैं दोनों में फर्क है। हम्म, इसमें एक डोरी के बाद दूसरा डोरी, लंबा डोरी से फिर उसको बांधा है। भागवतम में हाँ, प्लस चूले फीती लिखा है, उधर दूसरा कुछ दिया हुआ है, शायद गाय को बांधने का कुछ रस्सी जो है ऐसे कुछ दिया हुआ है भागवतम में। अगला अनुवाद। তাহার পর ওই সকল ব্রজাঙ্গনা গমন করিলে ক্ষণকালের মধ্যে তিনি রোদন লীলা প্রকাশ করিলেন। অনেক স্থান জুড়িয়া উদুকল চালানো করিবার জন্য আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। মানে অনেক স্থান दूर भी जा सकते हैं, আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তিনি বদ্ধ হইয়া কেবল বালকবৃন্দ সমন্বিত বলিয়া চঞ্চল জাত শ্রদ্ধা বর্ধিত করিলেন এবং পরিশেষে তাহাদিগের সহিত হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে অতি ধীরে উদকল চালনা করিলেন। আচ্ছা, এই বল। ওই সকল বালক তাহার বন্ধন দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই সকল রমণী যশোদার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বাদকে বাঁধিতে রজ্জু গোয়াইয়া দিয়া নিজে নিজে অট্টালিকা ঝাড়িয়া নন্দন ভবনে আসিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের সুযোগ পাইয়া অপর বালক দ্বারা সেই সকল রমণীদিগের নির্জন অট্টালিকা হইতে ওই সকল মনোহর শিক্ষ স্থাপিত নবনীতাদি বস্তু আরোহণ করিলেন, কিন্তু উদকলের আকর্ষণের জন্য আনন্দময় লীলাবশত না হস্তর দ্বারা না অপর কোন বস্তুর দ্বারা কিছুই সেই বন্ধন মোচন অভিলাষ করিলেন না। হিন্দি। और वो 60 फुट गया है। क्या था? लाला की उखल में बांध कर माता यशोदा पड़े प्रभु। 60? हाँ प्रभु। और इसको किया था क्या? नहीं, हिंदी में बाकी है। तो प्रभु तो पढ़े नहीं ना उसको 60 वाला को। ठीक है, अभी 61 में है, 61 हो गया है, तब बोलना चाहिए था। आगे पढ़िए। बोलिए प्रभु। कितना नंबर पढ़ना है अभी? 61 60 भी एक बार पढ़ के फिर 60। पढ़ लीजिए। हाँ, 61 पढ़ लीजिए। लाला को उखल में बांधकर माँ यशोदा शिक्षा देती हुई उस हठी कृष्ण के प्रति अपनी कठिनता को ही प्रकट करती हुई तथा उन हंसती हुई गोपियों के साथ कौतुक पूर्वक घर का कार्य करने के लिए जाती हुई श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बालकों को चारों ओर बैठा गई। पश्चात उन सभी ब्रजांगनाओं के चले जाने पर क्षण भर में ही रोने का विनोद आरंभ कर दिया। फिर लंबे चौड़े अनेक स्थानों के प्रति उखल के चलाने के लिए आनंद को प्राप्त किया, किंतु श्री कृष्ण ने बंधे हुए ही केवल बालकों से घिरे हुए होने के कारण चांचल्य जनित श्रद्धा को बढ़ा दिया एवं उन्हीं बालकों के साथ हंसते खेलते धीरे धीरे उसी उखल को चला दिया तथा उन्हीं बालकों के द्वारा जो गोपियां अट्टहास पूर्वक श्री कृष्ण के बांधने के लिए अपने अपने घर से रस्सियां लाई थी एवं उस समय नंद भवन में उपस्थित भी थी, इसको सुंदर अवसर समझकर श्री कृष्ण ने उन गोपियों की सूनी सी हवेलियों से मनोहर छींकों पर धरे हुए ताजे ताजे नवनीत आदि को चुगवा दिया और उन्हीं बालकों को इशारे से खवा दिया, किंतु उस उखल के खींचने से उत्पन्न आनंदमय लीला के कारण न तो अपने हाथ से न दूसरे किसी के द्वारा उस बंधन से मोचन करने की अभिलाषा की। তথায় পুরোদ্বারের সম্মুখবর্তী যমল অর্জুন নামক দুইটি বৃক্ষ তাহার নেত্রপথে পতিত হয়। বায়ু ভরে ওই দুই বৃক্ষের ন্যায় নৃত্য কার্য সম্পাদিত হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে তিনি ওই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হিন্দি। वहां पर पूर्व द्वार के सन्मुख खड़े हुए यमलार्जुन नाम के दो वृक्ष श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने आ गए, जो कि वायु के बबूड़े के द्वारा प्रवर्तित नृत्य सा करते रहते थे। श्री कृष्ण भी क्रमशः उन दोनों के बीच में ही विचरण करते करते उपस्थित हो गए।
श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रीला जीव गोस्वामी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय 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 12:25